حسین وادیوں میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے جو ہماری اصل ہائیکنگ ہے نا، کہ 2.5 گھنٹے کی جیپ ٹریک میں یہاں آپ کو ایک بوند بھی پانی کی نہیں ملے۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، بہت گہری خاموشی ہے یہاں پہ، بیوٹی بیوٹی اینڈ جسٹ بیوٹی اراؤنڈ می۔ But obviously, I can't stop. I have to go. وہ شروع ہوگی towards نانگا پربت بیس کیمپ۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آسمان ہے۔ رائے کوٹ برج سے جب میں اوپر آ رہی تھی تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ this journey is going to be this tough, this exciting and this much fun. Because since my childhood, میں ان حسین نظاروں کو، پاکستان کی خوبصورتی کو بہت قریب سے چھو کے دیکھنا چاہتی تھی. And imagine اب جا کے میرا وہ خواب پورا ہوا ہے۔ فیری میڈوز نانگا پربت کے آنگن میں بسا ایک ایسا گاؤں ہے جہاں سادگی، محبت اور ملنساری کے چشمے بہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں سے مل کر ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے، کیونکہ یہاں کے لوگ اپنے رسم و رواج اور خاندانی روایات کے ساتھ آج بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں اور خاص طور پر شہروں میں کمرشلزم اور مٹیریلزم کی وجہ سے بہت ساری خاندانی روایات ناپید ہو چکی ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو ان میں ملنساری، مہمان نوازی، بڑوں کا احترام، یہ سبھی جذبے موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کو اتنی محبت سے ملتے ہیں اور اتنی چاہت سے ملتے ہیں اور بغیر مطلب کے ملتے ہیں۔ شاید ان حسین وادیوں نے ان لوگوں کے دل بھی حسین بنا دیے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس حسین وادیوں کے خوبصورت باسیوں سے بھی کچھ بات چیت کر لی جائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام علیم اللہ۔ علیم اللہ صاحب جی۔ یہ بتائیے کہ اتنی حسین جگہ پر آپ رہتے ہیں، جی یہ تو بڑی لگژری کی بات ہے۔ میرا تو 60 سال ہے ایج، بچپن بھی یہیں بچپن میں یہیں گزرا، سب کچھ یہیں گزرا۔ میں پولیس حوالدار ریٹائر بھی ہوں، اچھا، تو میں اس جگہ کا پیدائشی ہوں۔ تو پھر تو یہاں کی تاریخ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ یہ بتائیے کہ جو نانگا پربت ہے، جی، یہ نانگا پربت ہمیشہ سے ہی نانگا پربت تھا یا پہلے کوئی اور نام؟ ہماری لینگویج میں اس کا نام ہے دیامروئی۔ دیامروئی؟ دیامر کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں وہ پریاں اور دیو رہنے والی جگہ۔ ہاں، اچھا، یہ جو پریاں اور وہ ادھر رہتے ہیں نا، دیو کی کہانیاں جو منسوب ہیں یہاں سے، وہ سچ ہے؟ وہ سچ ہے بالکل۔ ہمیں تو کچھ نہیں کہیں گے نا پریاں، ہم نہیں پھر نہیں سکتے ہیں آپ نا؟ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہم اور آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اچھا، مطلب میرے ساتھ تو کیوٹ رہیں گی نا۔ یہ فیری میڈوز کا جو نام ہے، یہ بھی سنا ہے کہ جرمنز نے رکھا تھا۔ اچھا، جرمنز کی فیوریٹ جگہ ہے؟ جرمن کی فیوریٹ، اس کو کہتے ہیں جرمن ماؤنٹن بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو لائف سپین ہے، یہاں پہ لوگوں کی جو عمر ہے نسبتاً بہت زیادہ ہے لوگوں کا، تقریباً تو یہ ماحول کی وجہ سے یا خوراک کوئی آپ کی بہت اچھی ہے؟ کیونکہ مجھے یہ ٹپ آپ نے ضرور دینی ہے، میں لمبا جینا چاہتی ہوں۔ ٹھنڈا کی وجہ سے یہاں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اچھا، پانی بھی صاف، ہوا بھی صاف، کھانا پینا بھی زیادہ تر سادہ ہوتا ہے یہاں کا، ٹھیک ہے کہ اس لیے عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ساری زندگی حسین، جوان اور خوبصورت رہنا چاہوں تو یہاں پہ ایک ہٹ لے لوں، کتنے کا ملے گا؟ ادھر ہاں، فری میں دیں گے، ادھر بیٹھو میرے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نعمت رائے کوٹی۔ رائے کوٹی؟ یس، یہ پورا علاقہ رائے کوٹ ہے، ہاں، تو رائے کوٹ برج ٹو ننگا پربت۔ جی جی آئی نو۔ تو نسبت سے میں نے رکھا، اچھا، مجھے پسند آیا۔ آپ کے موم اور ڈیڈ نے آپ کا نام رائے کوٹی رکھ دیا یا آپ نے خود رکھا؟ نعمت رائے کوٹی انہوں نے ہی رکھ دیا۔ تو مطلب آپ اس علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یس۔ اچھا، میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے یہاں کے بارے میں کہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں فیری میڈوز کے، وہ تقریباً ایک بہت بڑی فیملی ہی ہیں، مطلب سارے لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ ہمارے فور فادر they were brothers، اوکے، they were shifted from چلاس to here، Here۔ اور انہوں نے یہاں مطلب یہ جو سارا جو گاؤں بنایا ہے، جتنا خاندان ادھر رہتے انہوں ہیں نے سارے بنایا۔ برادرز ہیں۔
ओह वाओ। तो और- अच्छा, कोई आउटसाइडर अगर यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते होंगे लोग, इतनी हसीन जगह है, जी जी तो क्या तरीक़ाकार है? वो सिर्फ रेंटल रूम्स ले सकते हैं। अच्छा, बाकी यहाँ परमानेंट उनको ज़मीन सोल्ड नहीं की जा सकती। अगर आप बेचने पे आ जाते हैं, मेरा ख्याल है, तो ये तो हॉट केक है। ये आप सिर्फ देख सकते हैं, देख इसके सकते मालिक हैं। नहीं बन हाँ, सकते। ये असल मुर्शिद है ऐसा ना कि इसको दीदार करना है, इसको हाँ। खरीद के कोई ले जाना ये नहीं। कितनी मोहब्बत है आपको नंगा पर्वत से? ये यकीन माने मुझे 6 साल बाद कल जाना हुआ बेस कैंप। पूरा दिन मैंने जो हट से नंगा पर्वत को देखा, बस तकता रहा मैं। ग्लोरी इतनी है नांगा पर्वत की। और ये पैरागन माउंट है और इसकी रेंज आपको राउंड अबाउट 100 से अबव प्लेसेस, कराक्रम, देवसाई, बाबूसर, हर जगह से नजर आता है, 100 से अबव जगहों से, इसलिए इसको कहते हैं 100 फेसिस नंगा पर्वत। पाकिस्तान एक मैम टूरिज्म पोटेंशियल फूड कंट्री है। साउथ में आपका हिस्टोरिकल और इंडस्ट्रियलाइजेशन से भरा हुआ है, नॉर्थ में आपका एडवेंचर स्पॉट्स हैं और 8 अबव 2 माउंटेन्स आपके पास हैं, 8000 से अबव K2 और नंगा पर्वत, जिसे महान माउंटेन्स कहते हैं। बेशक। और नंगा पर्वत नॉर्थ फेस तो दुनिया में क्लाइंबिंग के लिए मोस्ट टफेस्ट और बहुत किलर माउंटेन इसे कहा जाता है और जर्मन डेस्टिनेशन भी कहते हैं। जैसे आपने कहा कि नांगा पर्वत जो है किलर माउंटेन भी है, सभी जानते हैं। आपके पास कोई ऐसा फिगर है कि आप बता सकें कि हाइकिंग के दौरान, इस एडवेंचर के दौरान कितनी अमवात हो चुकी हैं, क्या क्या वाक़यात हो चुके हैं? मेरे वालिद मोहतरम बता रहे हैं कि 53 में पाकिस्तान बनने के बाद जब हेरमन बुल ऑस्ट्रिया का एक बंदा आया था, तो उस वक्त मेरे वालिद की एज जो थी 7 साल या 8 साल। जब उसने क्लाइम करके वापसी में वो चले गए तो ब्रॉड पीक चढ़ते हुए वो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मुसलसल जो कंसेप्टेड कंट्रीज थी क्लाइंबिंग फील्ड में, उन्होंने यहाँ पे अटेम्प्ट करना शुरू किया। आके फिर खैर समिट किसी ने नहीं किया। 60s और 80s के दरमियान, अब एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, 60s और 80s के दरमियान यहाँ पे एक दफ़ा वालिद कह रहा है कि 100+ जो क्लाइंबर्स और पोर्टर्स थे। वो वजह ये थी कि आजकल का जो बेस कैंप है उस वक्त का नहीं था। वो बेस बना रहे थे ऊपर कैंप 1 में, तो उस वक्त ग्लेशियर जो बड़ी तादाद में था। अभी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो गया, तो वहाँ से ओवरलॉन्च हो गई और ओवरलॉन्च की नज़र में 100+ लोग एक साथ मर गए, एक ही उस पे। उसके बाद उन्होंने, जर्मन वाले बहुत आते थे तो जर्मन डेस्टिनेशन भी कहा गया और किलर माउंटेन दुनिया में मशहूर हो गया। 80s के बाद इतनी अटेम्प्ट नहीं हुई। जाके 95 में मेरी यादाश्त में जपनीज़ आए, तो मेरे ताया हैं, वो ताया वो पोटर था उनके साथ, हेड पोटर, वो मुझे साथ लेके गए, हम बच्चे थे, और वहाँ ले जाके टेंट पिच करके हम वापस आ गए। वो जपनीज़ चले गए, तो उन जपनीज़ ने अटेम्प्ट किया जुलाई में, वो सक्सेसफुल रहे। उसके बाद 2008 में एक इटालियन वो एक्सपीडिशन आ गई, उन्होंने क्लाइम करने की कोशिश की, लेकिन उनका एक साथी जो था क्रेविस में मर गया, तो बाकी दोनों ने हौसला डिमोरल हो गए, वो वापस चले आ गए। तो ये इटालियंस ने किस फेस से सबमिट करने की कोशिश की थी? नॉर्थ फेस। अच्छा, सबसे डेंजरस फेस जो है ये नॉर्थ फेस, और ये हमारे अकब में जो है नॉर्थ फेस टफेस्ट पिच है, क्योंकि ये बहुत स्टीप है। आप देखें, आप हमारे अकब में नंगा पर्वत खड़ा है और जहाँ मोस्ट शेडो पड़ा है, उसी शेडो से लोग क्लाइम करना चाह रहे हैं। हेरमन बुल ने एज लिया था, एज से वो सक्सेसफुल तो रहे हैं, लेकिन उसके अपने ज़मानी जो बुक्स में उन्हें कहा कि वहाँ से कोई न जाए, वो हवा की प्रेशर इतनी ज़्यादा है कि वो बंदा रुपल फेस, तरशिंग फेस फेंक देगा हवा। उसके बाद जपनीज़ ने इधर स्ट्रेट लिया है, तो ये स्ट्रेट से जाना बिल्कुल स्टीप है। ऊपर से अगर कहीं से भी नंगा पर्वत के कोई सिरे से भी ग्लेशियर फॉल होता है या रॉक फॉल होता है, वो सीधा क्लाइंबर पे हिट कर देता है। इसीलिए वो लोग ज़्यादा टाइम लगा के जिग-जैग लेके सेफ्टी को अवेल करते हुए जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली दे आर अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द टफेस्ट, और इसकी टेक्निकल जो पॉइंट्स से बहुत हार्ड है। इसलिए फिर क्लाइंबर्स ने रूट चेंज करके द्यामिर फेस को तरजीह दिया, वो द्यामिर फेस से जा रहे हैं, और मोस्टली कुछ लोग फिर रुपल से होके फिर द्यामिर से उतर रहे हैं। इस जगह का रुख नहीं करते। वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव। बाय द वे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, नेक्स्ट टाइम के मेरे ट्रिप के लिए ना मैं आपसे और भी बातें पूछूंगा। लेकिन अभी आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजलुर रहमान रायकोटी। अच्छा, तो सर ये बताइए कि आप यहाँ के रिहायशी हैं, नांगा पर्वत को समिट करने के लिए
दुनिया आती है, गोरे आते हैं, काले आते हैं, ब्राउन आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कभी आपने कोशिश की, मतलब जवानी में कभी कोशिश किया आप गए हैं कभी समिट करने की कोशिश? नहीं, मैं कैंप 1 तक गया हूँ। अच्छा, नहीं तो आगे क्यों नहीं गया, डर लग रहा है? तो उससे आगे शौक तो है मगर नहीं जा सका, हमारे पास इक्विपमेंट का भी मसला है। थैंक यू सर, आई विश कि आप ना सारा इक्विपमेंट अरेंज करके ना काफ़ी पैसे तो कमा लेते होंगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप नांगा पर्वत समिट करने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे ज़रूर। अच्छा, मेरे साथ इरफानुल्लाह है। मैंने सुना है कि आप बेस कैंप में जाके शिकार करते हो। जी, मेरा निशाना अच्छा, तो ये बताइए कि टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, शिकार की दिलचस्पी उनकी भी होती है, उनको भी अलाउ होता है कि नहीं, इलाव तो किसी को नहीं है। अच्छा। मुझे खुद भी नहीं है इलाव, मगर मैं खुफिया अपने उसी पे शौक से मैं जाके ये अच्छा खुफिया है कि कैमरे में देख के सारी दुनिया को बता रहे हैं। आज के बाद नहीं कर सकेंगे आप शिकार? मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे पास परमिट है। अच्छा। परमिट है मेरे पास, परमिट है। अच्छा, बगैर अच्छा। परमिट के मैं यहाँ पे कोई और शिकार नहीं कर सकता। परमिट लेके, इजाज़त लेके गवर्नमेंट से शिकार कर सकते हैं। ठीक है जी। नहीं, थैंक यू वेरी मच सर, आप सब लोगों से गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। अब जरा मैं फेरी मेडोज को डिस्कवर कर लूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। So exciting, बहुत ही मज़ा आया। Well, actually, जितनी खूबसूरत ये वादी है ना, मैं उस तरह से इसका हक तो नहीं अदा कर सकती कि आपको इसकी एक एक ब्यूटी और एक एक मंज़र के बारे में एक्सप्लेन करूं। और आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पे, मुझे KKH की तरफ आज दोबारा बढ़ना भी है वापस, बिकॉज़ और भी बहुत कुछ है जिसको एक्सप्लोर करना है। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, प्रॉब्ली दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू ऑफ फेरी मेडोज़। और इस ग्राउंड में आप देखें चारों तरफ कितने खूबसूरत हट्स बने हुए हैं। इट लुक्स जस्ट लाइक कोई ख्वाबों की दुनिया लग रही है ना, वाकई परियों का परिस्तान लग रहा है। और यहाँ पर आपने देखा मुख्तलिफ जानवर चल रहे हैं, लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है। और शाम का मंजर यहाँ का बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि नांगा पर्वत फुल व्यू अपनी फुल ग्लोरी के साथ यहाँ पर अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा है। और रात में ये पूरा का पूरा आसमान सितारों से भरा होता है। ये किसी ख्वाबों की दुनिया का शहर लगता है लिटरली। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आई विश आई कुड स्टे हियर मोर, बट फिर आएंगे, क्योंकि यू आर एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान विद वीना मलिक।